I come from Dehradun. Okay. That's where my roots are. I did my schooling in Dehradun. Then I did my graduation from Chandigarh. Absolutely. तो जैसे अगर मैंने भी कभी कुछ कहीं पे करना है तो मुझे लगता है पूछने में क्या जाता है, करने में कि आप एटलीस्ट आपको ये नहीं लगे कि मैंने ट्राई नहीं किया। नमस्कार दोस्तों, आई थिंक ऑलवेज मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त कपिल गिलानी एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ वाह वुमन। आपने क्रिएटिविटी तो सुनी होगी कि क्रिएटिविटी होती क्या है, और उस क्रिएटिविटी को अगर अपने पैशन में बदल दिया जाए तो बात ही क्या है। और वो पैशन अगर खाने से रिलेटेड हो तब तो बात ही कुछ और हो जाएगी। तो आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जो कि बनाती हैं बहुत ही उम्दा केक्स। यस, लेट्स वेलकम रीमा कपूर। वेलकम रीमा जी। थैंक यू। सो लेट मी टेल यू थोड़ा सा और रीमा जी के बारे में बताता हूँ, और उसके बाद रीमा जी की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे। सो रीमा जी एक बेकर है, फुल टाइम बेकर, जो कि बहुत ही सुंदर केक्स बनाती हैं, और इनके केक्स सेलिब्रिटीज़ भी पसंद करते हैं। काफ़ी सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि हम आपको शायद कुछ पिक्चर्स अगर होंगी तो शेयर भी ज़रूर करूँगा। सो वेलकम रीमा जी टू आवर शो। वेलकम टू वाह वुमन। सो लेट्स स्टार्ट रीमा जी। पहला सवाल आपसे ये है कि आप का करियर कैसे शुरू हुआ, लाइक योर एजुकेशन, और वेयर डू यू बिलोंग टू? Okay, I come from Dehradun. Okay. That's where my roots are. I did my schooling in Dehradun. Then I did my graduation from Chandigarh. Then I did my post-graduation from Delhi. Then I worked in Delhi. I started with a documentary filmmaking company as I've done mass communication. Okay. So after documentary filmmaking company, I did all sorts of production things, jobs. Then I moved to Sahara in Lucknow, their head office. Then I came back to HT. So you started your career with media. With media. Fantastic. Interesting. Okay. And after that, I got married to a captain, a ship's captain, and I loved sailing with him. So I left all my job and everything, and I started sailing with him. तो मतलब आप पूरा जॉब अपना कंप्लीट छोड़ के you went across हाँ, because to the sea. I think किसी को भी बताया जाए कि you can see the entire world. So I think anybody would want to do that, कि आपको वो maybe passion आपका था, मेरा passion was into media, but then जब वो आपको countries देखने को मिलती हैं, you get to sail and it's a altogether different experience. Correct. And I think not everybody gets that chance. So I believe कि जब chance मिले तो just grab the opportunity and go with the flow. So आपने जॉब छोड़ के you just simply went along with your husband और घूमना फिरना शुरू कर दिया? बिल्कुल. So till date I have like traveled across and I've seen like 23 countries around the world. 23 countries. And being a foodie, I have like tasted food, and I have a very bad sweet tooth. Okay. So because of that, I've tasted, and I love bakery. Again, anybody who's from Dehradun knows that it's a city of schools and bakeries. She rightly said Dehradun is a city of bakeries, correct. So if you come from Dehradun, आपका breakfast has to be a cake or a rusk or a bread. Wow. हमारे यहाँ पोहा उपमा नहीं खाते। अच्छा, हमारे यहाँ नॉर्थ में ज़्यादा चलता है। नॉर्थ मतलब दिल्ली साइड पे। दिल्ली में। So हमारे यहाँ bread, रस ये सब होता है। तो we have that in us. So कहीं भी गए, किसी भी शहर गए, so would want to try their cakes, their pastries, and so from there, because I always loved baking. When I was in school also, I did small course in baking, and you feel like making cakes at home. Correct. So I used to do that when I was in Dehradun. That was before marriage. So now after so many years, after 17 years, I again started baking. So रीमा जी, मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहूँगा कि जब आप अपने हस्बैंड के साथ सेलिंग में चली गई तो कितना टाइम आपने बिताया उस सेलिंग में? 7 to 8 years I was continuously like sailing with him. We used to go together on ship, come back together. My God. So, but it was fun. It was fun. It was fun. So home sickness नहीं होती थी? नहीं, because my home was being with him. So we used to carry our home along with us. you. Yeah. Okay, that's fantastic. Yeah. So eventually, when you started baking, that was when you decided that okay, आपको बेकिंग में इंटरेस्ट आ रहा है, या आपको शुरुआत कैसे हुई बेकिंग से?
लॉकडाउन में व्हेन एवरीबडी वाज होम एंड हम सब कुछ ही घर पे बना रहे थे. करेक्ट. फॉर दैट मैटर आई इवन मेड रसगुल्लाज एट होम व्हिच आई डिड नॉट नो. ओके. तो क्योंकि अब सबको ही घर का खाना खाना था, सो माय डॉटर वंस वांटेड टू बेक अ केक. सो that was an activity with her which again you know got back those interests. Right. जो करे थे एक टाइम पे और बहुत मजा तब आता था, बट दैट वाज लाइक अपने टाइम पास के लिए करा, हॉबी के लिए करा. तो अभी लॉकडाउन में तो सभी घर में बैठे थे, तो उसमें आपकी हॉबी है या जो भी है आपने वो ट्राई किया, इट टर्न्ड आउट वेल. अच्छा. देन वी फॉलो अ गुरुजी एंड उनकी गाइडेंस मिली. ओके. कि यू नो आप अच्छा बनाते हो, तो अगर अच्छा बनाते हो तो व्हाई डोंट यू परस्यू इट. करेक्ट. सो आई सेड ओके आई विल गिव इट अ ट्राई. तो जब कुछ बनाया, लोगों ने खाया, तो जब उन्होंने पसंद किया तो वो जो तारीफ मिली, दैट अप्रिसिएशन वाज लाइक अ किक. उससे आपको एक बढ़ावा मिला, इंस्पिरेशन मिली कि ठीक है, टेस्ट अच्छा है. हाँ, कि और बनाया जाए, कुछ और चीज़ अब बनाई जाए. राइट. सो आई थिंक व्हेन पीपल स्टार्टेड लाइकिंग इट, I was getting orders for cakes and I was getting repeated orders. So that's why I felt कि ठीक ही बना रही होंगी, अच्छा ही बन रहा होगा. But then I started liking it. Okay. So जैसे आपने बताया कि आपने शुरू किया, आपने ऑर्डर्स लेने शुरू कर दिए, आपको ये कब लगा कि अब मेरे को इसको फुल टाइम प्रोफेशन बनाना है? अभी तक तो आप हॉबी लेके चल रही थी कि चलो मैंने एक केक बनाया, एक ऑर्डर आ गया, 2 ऑर्डर आ गए, तो आपने ये कब डिसाइड करा या कैसे पता लगा कि एक अच्छा केक बनाने के लिए अब मुझे इसको फुल टाइम प्रोफेशन में कन्वर्ट करना है? जब बोर नहीं हुई तो, जब दिन में 5 केक भी बनाने थे और सुबह 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक भी केक बना रही थी. Okay. और तब भी ऐसे नहीं लगा था कि थक गए. तो लगा कि नहीं, इसमें मज़ा आ रहा है. एंड नाउ इट्स बीन अ ईयर, आई कंप्लीटेड 1 ईयर इन जून. तो लगा कि अगर 1 साल में भी आप थके नहीं हो, अभी भी जब कोई ऑर्डर आता है, चाहे दिन में 5 ऑर्डर भी हैं, it's never like कि ओहो इतना काम है. I'm very happy making yet another cake. Fantastic. So if you're happy doing something, that means when you're enjoying something, that means it's your passion. Okay, absolutely. That's a wonderful thing that she said. It's a passion when once you start loving things. आपको अच्छा, अगर दिल से अच्छा लगता है तो इसका मतलब आप अपना पैशन परसू कर रहे हैं. So पैशन से एक याद आया, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है रीमा जी. मैंने सुना है कि आप सेलिब्रिटीज़ के लिए भी केक्स बनाती हैं. It's just so happened कि और आपका केक बहुत पसंद भी किया गया. मैंने कुछ आपके वीडियोस देखे हैं और कुछ पिक्चर्स देखे हैं जिसमें सेलिब्रिटीज़ ने एक वीडियो भी बना के भेजे हैं कि बहुत पसंद आया. तो ये शुरुआत कैसे हुई? जैसे हमारे फैमिली में एक्टर्स हैं, टीवी एक्टर्स हैं. माय हस्बैंड सिस्टर इज अ टीवी एक्टर. सो वो आए हुए थे, शी वॉज विजिटिंग एंड वो जब जाते हैं तो उनको कुछ एप्पल पाई, कुछ केक्स दिए एंड शी शेयर्ड विद हर फ्रेंड्स. करेक्ट. इन द इंडस्ट्री. सो आफ्टर ट्राइंग माई एप्पल पाई, शी लाइक्ड इट सो मच दैट शी सेड आई वांट टू यू नो मेक अ वीडियो फॉर हर, आई वांट टू मेक अ रील फॉर हर बिकॉज शी इज बेक सो वेल. तो वो बिना उनको प्रॉम्प्ट किए या बिना बोले उन्होंने अपनी तरफ से बनाया. ओके. And because TV actors हैं, so they themselves love cakes. Absolutely. So वही उनके फ्रेंड सर्कल में again everybody is an actor. फिर यहाँ पे किसी को जानते थे तो उन्होंने उनके किसी इवेंट के लिए हंसराज आ रहे थे, जो भोला है भंडारी के सिंगर हैं. सो उन्होंने कहा कि तुम्हारा केक हमें तो बहुत पसंद है, वी वांट एन एगलेस है. सबसे बड़ी बात है कि इट्स एब्सोल्युटली एगलेस. अच्छा, यू प्रिपेयर ओनली एगलेस, नो एग केक्स. So it's 100% eggless. It is like for Jain special. So उन्होंने कहा क्योंकि वो भोलेनाथ के भक्त हैं, वो एग नहीं खाते हैं, हमें पता है आप एगलेस बनाते हैं, तो आप उनके लिए भी बनाइए. बिकॉज फैंटास्टिक. फिर उन्होंने केक ट्राई किया एंड अगेन ही ऑल्सो रियली लाइक द केक. उन्होंने जबकि बोला कि मैं केक कम खाता हूँ एंड खाने के बाद अगेन ही सेड कि थोड़ा सा और. अच्छा, थोड़ा सा. So that's how I think. That's how it started. So then I visited a few properties, few 5-star hotels where I went and did some baking workshops with them. तो थोड़ा सा वहाँ से आप experience gain करते हो. You learn more. There's no end to learning. Correct. And in baking, if you see, there is actually no end to learning. Correct. So उनसे सीखने को मिला. I went to Binsar. वहाँ पे द कुमाऊँ है, वहाँ पे एक शेफ़ के साथ काम किया. W गोवा में एक शेफ़ के साथ बनाया. फिर अभी रिसेंटली आई वेंट टू राफल्स उदयपुर. वाओ. सो सब जगह पे जब उनके साथ बना के मज़ा बहुत आता है. सो वाओ, व्हाट एन अमेजिंग स्टोरी.
कितने होटल्स के अंदर अच्छे अच्छे शेफ्स, बड़े से बड़े शेफ्स के साथ आपने बेकिंग करी है, आपने सेलिब्रिटीज़ के साथ आपने उनके लिए केक बनाए हैं। सो इतना कुछ करने के बाद एक और मेरे जहन में जो मैं सवाल से स्किप कर गया था, ये विपुल केक्स बेक्स विपुल बेक्स कैसे नाम आया? Okay, my daughter's name is Vipul Lakshmi. Okay, fantastic. And Vipul Lakshmi, say we took Vipul. Okay. And Vipul Bakes. That's how it came out as Vipul. Vipul again, Bakes. as I said, my Guruji's direction. Okay. Because we believe in him and हमें लगता है जैसे घर में किसी आप बड़े की राय लेते हैं. Right. So in our house, he is the eldest for us. Okay. तो जैसे आप अपने ग्रैंडफादर के पास जाते हैं या आप अपने फादर के पास जाते हैं, so we go to him. You know, कि हम ये चीज़ कर रहे हैं, ये अच्छा है बुरा है, वो आपको सजेशन देते हैं. He would not tell you कि no do this. He just gives you a suggestion. If you like it, you do it. So because we have a belief in him, so उन्होंने suggest किया कि आप Vipul Bakes रखो. So and that clicked. So Vipul Bakes was there, and in fact he even told me how to design my logo. कि कहाँ पे आप V में फर्न लगाएंगे, कहाँ पे आप N में एक फ्लावर लगाएंगे. Fantastic. कहाँ पे आप शेफ्स कैप रखेंगे. So he even designed my logo. He guided you basically. Fantastic. So over a period of 1 year, रीमा जी, आपने इतना कुछ अचीव कर लिया है और माशाल्लाह आप आगे ग्रो भी कर रही हैं. So where do you see yourself आज से 5 साल बाद? Like what is your dream as where would you like your brand to be as Vipul Bakes? Okay. So when I was still in school and college, I always wanted to open a cafe. अच्छा. Because as I told you, I come from Dehradun. तो अगर कोई भी आप हिल स्टेशन जाते हो, देहरादून जाते हो, you see a lot of cafes और cozy places. Yes. And शुरू से वो देख के हमेशा से मन किया कि एक क्यूट सा कैफे हो, बुक्स है, अच्छा सा वार्म केक्स हैं, सैंडविचेस हैं, लिटिल बिट ऑफ सेवरीज जो है. तो वो शुरू से मन था कि एक कैफे खोलना है. Yes. But I guess as you move on in life कि या कभी सेलिंग कर लिया या कभी वो गया तो वो फिजल आउट हो गया. But now that I'm doing this as a profession, I would love to open a nice place, a nice cute place for myself. Okay, that's fantastic. Let's see when my daughter grows up, because right now my home needs me, my daughter needs me. So that is why अभी comfortable है doing everything from home. मेरा भी अगला सवाल बस एक्चुअली आपने अपने जवाब में थोड़े से जवाब में दे दिया कि आप इतना कुछ मैनेज कैसे करती है? आपके ऑर्डर्स भी हैं, आपको डॉटर भी है. वो सबको पता है. वी गर्ल्स जस्ट डोंट हैव 2 hands. वो हमारा मल्टीटास्किंग होती है. मल्टीटास्किंग होती है. आई नो मेन कैन नॉट डू इट. मेन अगर ड्राइव करें सिर्फ ड्राइव कर सकते हैं. हम मेकअप भी कर सकते हैं ड्राइविंग के टाइम. हम बातें भी कर सकते हैं फोन पे. एंड लोग लेडी ड्राइवर देखे अपने आप ही रास्ता दे देते हैं. अपने आप रास्ता दे देते हैं. करेक्ट. So we somehow, I think we are gifted like that. I think all women for that matter, even if they're not working from home, but they have so many jobs in the house. But they still do it. They still do everything, I think. काफ़ी कुछ करते हैं. अपना पूरा घर संभालते हैं. They're taking care of the kids. They're taking care of each and everything in the house. And जो बीच में से टाइम निकाल के अपने लिए कुछ करते हैं. So अपने लिए क्या करती हैं? अपने लिए मैं बेकिंग कर रही हूँ. मुझे उसमें बहुत मज़ा आ रहा है. That's fantastic. Okay, my next question or probably would be, what is your message to ladies जो आज कुछ करना चाह रही हैं, चाहे आपकी फील्ड से ही रिलेटेड हो, कि बेक्स के अंदर, बेकिंग के अंदर रादर, क्या कैसे कर सकती हैं, कैसे स्टार्टअप कर सकती हैं? चैलेंजेस क्या आते हैं एज अ फीमेल? आपको क्या चैलेंजेस आते हैं, या क्वालिटी के अंदर आपको कॉम्प्रोमाइज़ कैसे नहीं करना है? सो आई मीन जस्ट आई होप यू गेट माई क्वेश्चन के एग्जैक्टली जो लेडीज़ आज घर पे बैठी हैं वो कैसे शुरुआत कर सकती हैं कि एक उनको अगर आगे बढ़ना है, या अगर उनको सिर्फ उनको पता है कि मेरे अंदर क्रिएटिविटी है और मुझे केक्स मेरे को अच्छे लगते हैं बनाने, या मुझे अच्छा लगता है, या मैं बना सकती हूँ. व्हाट मैसेज यू हैव फॉर देम? ओके, आई हैव अ वेरी गुड एग्जांपल फॉर दैट. श्योर. मैं जहाँ रहती हूँ, मेरी नेबर में कोई आए रहने, एंड उनसे जब मेरी बात हो रही तो मुझे पता चला कि वो जयपुर से हैं एंड वो बहुत अच्छा दाल बाटी चूरमा बनाती है. फिर उन्होंने बताया मैं छोले भटूरे भी बहुत अच्छे बनाती हूँ. फिर उन्होंने मुझे कुछ कुछ खाना भेजा. मैंने कहा जब आप यहाँ रहते हैं, मैंने ऐसे ही शुरू किया, आप ग्रुप में क्यों नहीं डालते? मेक योर दाल बाटी चूरमा, पुट इट इन द ग्रुप कि यू मेक दिस. क्योंकि मुझे कोई नहीं जानता. मैंने कहा आप डालो, आपको सब जान जाएंगे. करेक्ट. अगर उसमें 300 लोग हैं उस ग्रुप में, आपने बस इतना डालना है कि मैं कल दाल बाटी चूरमा बना रही हूँ, मैं यहाँ से आई हूँ, जयपुर से हूँ, मेरा ये नाम है,
मैं ये खाना अच्छा बनाती हूँ, अगर किसी को ट्राई करना है, because that's how I started. Okay. I made an apple pie and I had put it in my society group that I am making an apple pie and I think it's pretty good if somebody wants to try. So उन्होंने जब ये डाला एंड वही लॉकडाउन का टाइम, लोगों का मन था कि कुछ घर का और अच्छा मिले एंड सबको पता है घर की चीज़ अच्छी ही होती है। तो उन्होंने वो डाला, मेरे कहने पे उन्होंने किया। फिर मैंने कहा कि कैसे करना है, तो उन्हें बताया कि आप ये ग्रुप में डालो, अपनी इन्फो डालो, अपने बारे में बताओ। फिर उन्होंने धीरे धीरे उसमें डाला कि अच्छा अब मैं ये बना रही हूँ, तो मिर्ची वड़ा से लेके उन्होंने आई मेक केक्स, शी मेक्स मिठाईज़। अच्छा। So it was, I am not a very competitive person. I believe in bringing people together. मुझे नहीं है कि अगर कोई और भी बेकर है तो मैं से कहूँगी नहीं, it is a competition. No, there is, I think we grow together. That's a wonderful thought. So if you, हाँ, अगर कोई और बेकर है तो you cannot say कि नहीं उसका नहीं अच्छा या मेरा अच्छा है। मुझे लगता है हर होम बेकर अच्छा है। करेक्ट। जो भी घर से कोई काम कर रहा है वो अच्छा है। वाओ। बिकॉज उसमें आपकी नीयत अच्छी है, आपका अगर पैशन है आप तभी कर सकते हैं। आप पूरा दिन खड़े होकर बेकिंग तभी कर सकते हैं अगर आपका पैशन है। आप पूरा दिन कचौरियाँ भी तभी तल सकते हैं जब आपका पैशन है। तो शी स्टार्टेड, मैंने सिर्फ सजेस्ट किया एंड व्हाट आई बिलीव इज गॉड सेंड्स पीपल टू यू। मैंने उन्हें सजेशन दिया, मे बी दैट वाज अ गॉड्स वे ऑफ टेलिंग हर कि आप ये बनाओ। बनाना उन्होंने है, वो उनकी मेहनत और उनकी क्रिएटिविटी, उनका हुनर है। तो उन्होंने शुरू किया, आपको जरिया बनाया। आपको जरिया बनाया। वाज जस्ट अ प्रॉम्प्ट फॉर हर कि आप ट्राई करो एंड कहीं ना कहीं किसी ना किसी को थोड़ा सा पुश चाहिए होता है। एब्सोल्युटली। कि चीज़ अच्छी है आप ट्राई तो करो। मेरी मानना है लाइफ में ये बात कि आप जैसे कहते हैं ना पूछने में क्या जाता है। एब्सोल्युटली। तो जैसे अगर मैंने भी कभी कुछ कहीं पे करना है तो मुझे लगता है पूछने में क्या जाता है, करने में क्या जाता है। खराबी होगा, क्या होगा ज़्यादा क्या होगा कि आप एटलीस्ट आपको ये नहीं लगेगा कि मैंने ट्राई नहीं किया। सो यू शुड आई थिंक ऑलवेज गिव इट अ ट्राई। सो शी ट्राइड एंड शी गॉट अ वंडरफुल रिस्पॉन्स। उन्हें भी 1 साल हो गया ये करते हुए, बिकॉज मैंने शुरू करा उसके 1 महीने बाद मैंने उनसे बोला कि आप शुरू करें, तो उन्होंने करा एंड शी गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स एंड शी इज़ ऑल्सो ग्रोइंग। उनका अपना कैलिबर है, अपने उस पर वो ग्रो कर रहे हैं। सो यू फील हैप्पी कि आप किसी को मोटिवेट कर पाए, किसी को कुछ कह पाए। मे बी अब कल बिकॉज मैंने उन्हें किया तो उनमें ये रहेगा, अगर उन्हें कोई और अच्छा मिलेगा तो उन्होंने कहा किसी ने मुझे भी कहा था, मैं भी इसको बोल सकती हूँ आगे। Absolutely. So it's like a chain, I guess. Correct. So what wonderful thoughts that she has. I mean, I'm sure कि अगर आप भी घर पे बैठी हैं और आप कुछ करना चाहती हैं, चाहे बेकिंग हो चाहे कुछ भी हो, आप कुछ भी कर सकती हैं, बट अगर आप में इच्छा शक्ति है तो डेफिनेटली करिए। सो रीमा जी, थैंक यू सो मच। एंड सवाल तो बहुत हैं लेकिन सवाल ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन आपसे मिलके आपकी सोच को जान के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच एंड इट्स बीन अ प्लेजर। So guys, thank you so much for watching this episode, and please do keep watching. Please do like and share and subscribe to the channel. Thank you so much once again, Reema ji. Wow Woman, yes. Wow Woman. Please do keep watching Wow Woman. Thank you so much. Thank you. Thanks.